Hello all, welcome back to BioRock's channel. Here I am today introducing you with the other functionality of the kidney. In the last video, we have seen about the function of kidney in regulating the blood pressure, and we could even see that how it was actually regulating the glomerular filtrate rate. Okay, so today we'll be learning about other functionality, that is about how your kidney is going to actually regulate the red cell mass. आपके RBCs के नंबर को, red cell mass. Or if we are talking about red blood cells, then we should speak about the amount of the oxygen supplied. Okay, yeah, amount of the oxygen that is circulated, because the oxygen circulation, yeah, supply is related with what, children? It is related with the red blood cells, obviously, because they have their hemoglobin. Okay, so today in this video we'll be learning about how your kidneys are trying to actually regulate the red cell mass, thereby how are they regulating the oxygen supply to the body. Okay, so before I enter into this, I'll share my screen with you to show you a few of the slides which will be making it easier for you to understand this particular process. Okay, so let me do that. Okay, so I'm sharing my screen with you all. So the first thing is about this particular thing, children, that is about your kidneys. So you all know that your kidneys are going to actually have the outermost portion, which is being called as what? Cortex. I think if you remember, we have seen this particular longitudinal section of the kidney we have learned, and in that we have learned about the what you call is the outermost portion, which is being called as a cortex area. So if you remember the cortex area, kids, so I'm talking about the outermost portion, which is being called as a cortex area. So this particular cortex area is the lower part of the cortex area is having few of the cells here like this, and these cells are being called as the specialized. These cells are actually, let me write it for you. So these cells are actually specialized fibroblast cells. These are the specialized fibroblast cells. Okay, and these specialized fibroblast cells are none other than the repos. We are going to call them as repos cells. We are going to call them as repos cells. Repose cells का मतलब होता है, what is the meaning of the repose cells? Let me write it for you, children. It is being called as a renal, R for renal. EPO is nothing but E is going to stand for the erythropoietin. Okay, so this is going to be your erythro, and this is erythropoietin. Okay, the next is going to be P stands for producing, erythropoietin producing. Okay, what is O is oxygen. Okay, oxygen. S is going to be supply. So this is oxygen supply. So repose stands for renal erythropoietin producing oxygen cells. इसका ही shortcut हम लोग बोलते हैं क्या? R E P O and S. This is being called as repose. So remember, children, हमारे जो ये outermost part of your kidney है, longitudinal section का जो cortex बोला हमने, उसके ही नीचे हिस्से में lower section of your kidney, that is a cortex. Okay, lower section of your cortex is having some specialized fibroblast like cells. These specialized fibroblast like cells are being called as what? They are being called as repose cells. We are going to call. Remember, children, ये repose cells का नाम है renal erythropoietin producing oxygen supply cells बोलते हैं इसको. erythropoietin को हम लोग shortcut में इसका abbreviation है medical terms में EPO. ओके, ये आपको याद रखना है. ओके, सो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि हमारा किडनी कैसे हमारे रेड सेल मास को कंट्रोल करता है, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर वो कैसे चेक करता है और कैसे रेगुलेट करता है. तो इसके वजह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में, रिपोज, और वो कहाँ पर है? दैट इज इन द लोअर सेक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स, किड्स. ओके, सो आप ये याद रखिए,
आपको पहले ही पता है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो किडनी है इट इज सप्लाइड विथ 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है हमारे जो हमारे हार्ट के थ्रू आता है, दैट इज 20% ऑफ द ब्लड इज जस्ट कमिंग ओनली टू योर किडनी किड्स। एंड दूसरे वे में अगर बताना है तो 1 लीटर ऑफ ब्लड per minute is circulated to your kidneys, both the kidneys. See how enormous blood is being supplied to it. Okay, so this becomes a perfect site to check whether your red blood cells mass is maintained, the number is being maintained, whether or not there is very good supply of oxygen or not, isn't it? एक बार सोचिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है आपके किडनीज में ही पहुंचता है, तो ये एक परफेक्ट जगह रहेगा जो चेक कर सकता है आपके रेड ब्लड सेल नंबर, और वो जो चेक कर सकता है आपके ऑक्सीजन अमाउंट कितना है हाई है या कम है, वो यहाँ पर चेक कर सकता है। सो वो सेल्स जो चेक करते हैं, और वो सेल्स हमारे होते हैं क्या, दे आर गोइंग टू बी अ रिपोज सेल्स है हमारे। ओके, समझ में आया? अभी हम इस मैकेनिज्म में आते हैं। जब आपका रीनल आर्टरी, आपको पता है कि आपके जो किडनी है, किडनी को जो ब्लड सप्लाई करता है वो है हमारा रीनल आर्टरी, isn't it kids? So हमारा रीनल आर्टरी जो है हमारे जो किडनी है उसको ब्लड फ्लो लेकर आता है। तो जब ये ब्लड इज बीन फ्लोन इनटू योर किडनीज, क्या हो रहा है, आपके टिश्यूज जो है, आपके सेल्स जो है वो परफ्यूज हो रहे हैं आपके ब्लड के थ्रू, राइट? परफ्यूज का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ fluids to the cells and tissues is called as perfusion. So जैसे आपका ब्लड सप्लाई आता है तो आपके सेल्स और टिश्यूज क्या हो रहे हैं, परफ्यूज हो रहे हैं। होते टाइम क्या होता है, आपके रिपोज सेल्स जो है, आपके रीनल एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई डिटेक्टिंग, मींस ऑक्सीजन सप्लाइड वाले जो सेल्स हैं आपके, ये सेल्स क्या करते हैं, वो आपका ब्लड जैसा आता है, दे डिटेक्ट द लेवल्स ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे ही आपके रिपो सेल्स को पता चलता है कि आपके जो ब्लड सप्लाई है उसमें अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल्स है कम है, फर्स्ट कंडीशन है किड्स ये वाला, जैसे आपका ब्लड फ्लो हुआ है तो उनको पता चला है कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल्स जो है कम हुए हैं, तो तुरंत क्या करते हैं, आपके जो रिपोज सेल्स है यहाँ पर, आपके रिपोज सेल्स जो है चिल्ड्रन, सो आपके डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स के कंडीशन में आपके रिपोज सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, तुरंत दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज योर ईपो। मैंने बोला है एरिथ्रोपोइटिन का एब्रिवेशन होता है ईपो, ये है चिल्ड्रन आपका एरिथ्रोपोइटिन, दिस इज योर एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन किसने प्रोड्यूस किया है, रिपोज सेल्स। रिपोज सेल्स कहाँ पर है, आपके लोअर कॉर्टेक्स एरिया में है। तो ये जो ईपो सेल्स है आपके, एरिथ्रोपोइटिन है, वो एक्चुअली क्या है, एक एंडोक्राइन हार्मोन है। ये जो है आपका एक एंडोक्राइन हार्मोन है। एंड आपको पता है बच्चे कि आपका जो एंडोक्राइन हार्मोन है वो कहाँ सर्कुलेट, वहां वो कैसा जाता है अपने टारगेट टिश्यूज तक, कैसे जाएगा वो, इट इज गोइंग टू बी सर्कुलेटेड इन द ब्लड। तो ये क्या करेगा, अभी आपका एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आपके ब्लड फ्लो में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हमारा फर्स्ट कंडीशन है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो वो डिटेक्ट किया जाता है आपके किडनीज के लोअर कॉर्टेक्स एरिया में रिपोज के थ्रू। ये रिपोज सेल्स तुरंत ऑक्सीजन को कम होते ही क्या करते हैं, आपके एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, कहां पर, ब्लड के अंदर। अभी ये ब्लड क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेट होता है तो ये एरिथ्रोपोइटिन किसके ऊपर काम करने लगता है, बोन मैरो के ऊपर काम करने लगता है। चिल्ड्रन दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वेयर इज अ साइट ऑफ एक्शन, एरिथ्रोपोइटिन साइट ऑफ एक्शन। ये साइट ऑफ एक्शन कहां पर है आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर बोन मैरो। तो आपका एरिथ्रोपोइटिन जो है उसका साइट ऑफ एक्शन है आपके बोन मैरो। सो ये बोन मैरो कहां पर है चिल्ड्रन, वी कैन सी यूजुअली बोन मैरो जो है आपका देखा जाता है आपके फ्लैट बोन्स में देखा जाता है ना, फ्लैट बोन्स में देखा जाता है। अगर आप देखेंगे आपके जो फ्लैट बोन्स है तो कहाँ कहाँ पर है आपके फ्लैट बोन्स,
लेट मी राइट इट फॉर यू चिल्ड्रन। आपके फ्लैट बोन्स कहाँ पर है वो हम लोग देख सकते हैं हमारे कहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी आपके फ्लैट बोन जो है वो है आपका स्टर्नम है, आपके रिब्स भी है, और आपके स्कल प्लेट्स है, और कौन है आपके पेल्विस बोन्स है जो फ्लैट है, और आपके बोन मैरो कहाँ पर पाया जाता है किड्स? इट कैन बी इवन सीन ऑन द टिप्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ओके, टिप्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ओके, ये आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था किड्स? हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन जब हो रहा है, स्पेशली अनीमिक कंडीशंस में किड्स। अनीमिक कंडीशंस ज्यादातर कहाँ पर कैसे होता है? इस आपके क्रॉनिक किडनी फेल्यूर में, जब आपके किडनी को लेस ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ्टन आपके क्रॉनिक किडनी फेल्यूर्स में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है आपके किडनीज में। जैसे ब्लड सप्लाई कम है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी किडनीज का फंक्शनैलिटी नहीं है, वो किडनी क्रॉनिक किडनी फेल्यूर है, तो यहाँ आपकी किडनीज जो है आपके एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो ये बंद करने की वजह से क्या हो जाता है? तो वी विल सी दिस अनदर कंडीशन, हम लोग लास्ट में देखते हैं। बट ये याद रखिए कि अनीमिक कंडीशंस में क्या होता है, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर में भी अनीमिक कंडीशंस होते हैं। तो अनीमिक कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपके रिपोज सेल्स को स्टिमुलेट करने पड़ेगा। जब आपके रिपोज सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम लोग एब्रिवेट करते हैं ईपो करके। और ये एरिथ्रोपोइटिन कहाँ है, कैसा है वो एक एंडोक्राइन हार्मोन है, जो वो क्या करता है? ब्लड में सर्कुलेट होता है। किधर जाएगा वो? उसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर है? बोन मैरो है। तो बोन मैरो कहाँ पर देखा हमने? फ्लैट बोन्स में देखा। कौन से बोन्स है वो? स्टर्नम है, रिब्स है, स्कल है, पेल्विस है। उसके साथ साथ आपके बोन मैरो जो है आपके टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में है। तो जैसे ही आपके एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो में आता है, तो बताइए बच्चों, आपके बोन मैरो में जो है कौन से सेल्स देखे जाते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या? स्टेम सेल्स को देखते हैं। तो आपके बोन मैरो में एरिथ्रोपोइटिन जो है कहाँ काम करता है? आपके स्टेम सेल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पर काम करने लगता है, आपके जो ये जो स्टेम सेल्स है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं आपके आरबीसीज को। समझ में आया? तो जैसे आपके आरबीसी नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बच्चे? आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी तो बढ़ेगा, है ना? जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उतना अच्छा क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है आपके पास, आपके ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो यही है आपके जो रिपोज सेल्स का फंक्शन है, आपके किडनी का दूसरा फंक्शन। मैं और एक बार आपको बताती हूँ कि आपके लोअर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स में जो स्पेशलाइज्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो रिपोज सेल्स है। जब भी लो ऑक्सीजन डिटेक्ट किया जाता है आपके किडनी में, तो तभी वो क्या करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड में सर्कुलेट होके जाता है बोन मैरो में। और वो बोन मैरो में कहाँ जाए? बोन मैरो में वो जो है आपके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, और उस आरबीसी प्रोडक्शन को हम बोलते हैं क्या? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो आपका एरिथ्रोपोइटिन जो है ये वाला, इट इज डायरेक्टली हेल्पिंग इन व्हाट चिल्ड्रन? एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस, राइट? सो इधर इसीलिए उन्होंने दिया है कि इट इज रेगुलेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग द एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। कौन? आपका एरिथ्रोपोइटिन, है ना? सो दिस इज अबाउट योर फंक्शनैलिटी जो है हमने देखा है यहाँ पर। सो लेट मी कम टू अनदर स्लाइड चिल्ड्रन, आई विल शो यू अनदर स्लाइड। ओके, सो हमारा दूसरा है ये वाला। आप ये याद रख लीजिए कि जैसे हमारे ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लगते हैं, तो आपने देखा है कि हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो है, लेट मी गेट द इंक फॉर यू। ओके, सो यू कैन सी दैट जैसे आपके ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज होने लगे हैं, तो आपके ये जो किडनी के सेल्स है जिसको हमने रेपोज सेल्स बोला है, जो रीनल एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन सेंसिंग सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो एक्टिवेट करते हैं। मींस आपके ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया तो आपके रेपोज सेल्स क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट हो गए हैं, और वो रिलीज करने लगते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा? वो आपके बोन मैरो में जो है आपके स्टेम सेल्स को, चिल्ड्रन, स्टेम सेल्स को वो एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है और वो क्या करवाता है, आपके आरबीसीज को, नंबर को बढ़ाने लगता है ना, क्योंकि स्टेम सेल्स ही आपके डिवाइड होके क्या बनेंगे, आरबीसीज बनेंगे। तो वो स्टिमुलेट कर रहा है, इसका मतलब है वो स्टिमुलेट किसको कर रहा है, स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। अभी इधर आ जाइए, जैसे ही आपका नर्व सिस्टम, जैसे आपका ऑक्सीजन आरबीसीज बढ़ गए हैं और आपका जो ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ गए हैं, तभी क्या होता है, आपके जो रिपो सेल्स है, आपके रिपो सेल्स है, वो स्टिमुलेट नहीं होते हैं अभी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई में वो क्या होते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारा रिपो सेल्स ने ऑक्सीजन सप्लाई देख लिया, तो हमारे रिपो सेल्स क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को बंद कर देता है। जैसे आपका एरिथ्रोपोइटिन बंद कर देता है, तो आपका जो स्टेम सेल का एक्टिविटी है, जो एक्टिवेशन है, जो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करना है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, यहाँ पर होता नहीं है। तो जिसके वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, आपके जो आरबीसीज है जो है वो अभी बढ़ने नहीं लगते हैं, बल्कि वो कांस्टेंट रह जाते हैं। सो इसीलिए उसने दिया है reduce bone marrow stimulation, क्योंकि यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या डिटेक्ट कर लिया है, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिटेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा मैकेनिज्म चल रहा है हमारे लोअर कॉर्टेक्स एरिया में, रेपो सेल्स में जो मैकेनिज्म चल रहा है। ओके, नाउ लेट मी कम टू, आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक किडनी फेल्यूर के बारे में बात कर रही थी, अनीमिया कंडीशन में बात कर रही थी किड्स। इफ यू कैन सी, ये अनीमिया जो है आपका यूजुअली हम लोग जो देखते हैं, लेट मी चेंज द इंक फॉर यू, that will be visible properly. So ये जो अनीमिया है आपका यूजुअली कहाँ पर, बिकॉज हम लोग किडनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक किडनी फेल्यूर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपके क्रॉनिक किडनी फेल्यूर में आप देख सकते हो कि अनीमिक कंडीशंस रहते हैं, आपके आरबीसी रेड सेल मास लो है, आपके रेड सेल मास लो है, आपका जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम चला जाता है। तो उस टाइम पे आपका जो यहाँ पर लेट मी रिड्यूस अ बिट ताकि आई कैन राइट वेल फॉर यू किड्स। ओके, सो आपके किडनीज के ये जो रिपोज सेल्स है, वो रिलीज करता है आपके एरिथ्रोपोइटिन। इपो का मतलब क्या है, एब्रीवेशन है आपके एरिथ्रोपोइटिन का। तो ये वाला जो है आपके रिपोज जो है इपो को प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपके ब्लड सप्लाई में सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होके वो जाते हैं आपके बोन मैरो। ये है आपका जो लॉन्ग बोन है, उनका टिप्स में जो बोन मैरो है, और वहां पर वो स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे आपके स्टेम सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी नंबर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए हैं तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ गया है, ऐसा वो रेगुलेट करने लगता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मींस इंपॉर्टेंट इन द सेंस टू नो कि हम इसको कैसे मेंटेन रेगुलेट करते हैं क्रॉनिक किडनी फेल्यूर पेशेंट्स में किड्स। बिकॉज मैंने बोला क्रॉनिक किडनी फेल्यूर जो है, इसमें जो है ऑफ्टन आपके किडनीज को जो है आपका ब्लड सप्लाई इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ओके, आपके क्रॉनिक किडनी फेल्यूर्स में आपका ब्लड जो है फ्लो जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो आपके जो रेपो सेल्स है उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, तो ये एपो को प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो क्या हो जाएंगे, ये वाला जो प्रोसेस हमने देखा है एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करना, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मेडिसिन में ओल्डन ईयर्स मीन्स रिसेंट में नहीं, पहले जमाने में जब किसी क्रॉनिक किडनी फेल्यूर का केस रहता था, तो तभी क्या किया जाता था, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था। ओके, ओल्डन डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि हम लोग लकी है कि हमारा मेडिकल फील्ड जो है बहुत एडवांस हो चुका है। अभी हम लोग इसका इपो के इंजेक्शंस अवेलेबल है, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला है कि वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको केमिकली बिल्ड किया जाता है, और ये जो इपो का इंजेक्शंस है इनको दिया जाता है किसमें, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर पेशेंट्स में दिए जाते हैं। और ये इपोस क्या करते हैं, फिर हमारे एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये स्टेम सेल्स को फिर से क्या करते हैं, स्टिमुलेट करेंगे, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इपोथेरेपी बोलते हैं, जहां पर हमने क्या किया है, हमारे जो
क्रॉनिक किडनी फेल पेशेंट्स है, उनमें हम लोगों ने एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शंस दिया है। ये वाला है प्रोसेस। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। ओके, सो आज का जो प्रोसेस है उसमें हमने पढ़ा है कि हमारा जो किडनी है वो हमारे रेड सेल मास को रेगुलेट कर रहा है, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो सप्लाई है हमारे बॉडी के अंदर उसको भी रेगुलेट कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है, एक सेंसिटाइज सेल्स है, जो स्पेशलाइज सेल्स है रिपोज किडनी के कॉर्टिकल एरिया में, वो डिटेक्ट कर लेते हैं और वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करके एरिथ्रोपोइसिस करवा के हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो। ओके, आई होप अब आप सब लोगों को ये समझ में आया है। So kids, what I want you children to do is, if you understood this particular topic and अगर आपको समझ में आया है and if you felt it as very good, please hit the like button and try to share this with your friends and many other people, and try to please subscribe my channel. Okay, please hit the like button, and I'll be waiting for your comments in the comment section. That is going to be very boosting for us to make many such good videos and informative videos. And in the next coming video, I'll be making what you call is video regarding the leftover, that is I haven't did the video regarding the selective reabsorption, that is a functionality of the tubular portions of the nephron. So I'll be meeting you in the next video. Children, please put your comments. Okay, thank you so much. Thank you all.